So the last class we have discussed the different types of number systems. So just I will give you a recap briefly, right? So binary number systems, we have studied that it is having a base of how much? 2, right? Then all larger binary numbers are represented in terms of 0 and 1. So every number is in the form of 0 and 1 only. So this way we have written 0, 1, then 1, 0, 1, 1, right? Then if you go further, 1, 0, 0, 1, 0, 1. So can you know what is the meaning of 1, 0, 0? What's the number? It represents 4. 4. 4, sir. 4, then 5, 6, 7, 8, right? Yes, sir. 8 to 15, right? Yes, sir. So process of writing the higher order binary numbers is after 1 is similar to the decimal number system. जैसे हम पहले करते हैं, we counting starting from your 0 to 9, then 10 to 19, then 20 to 29. The same way हम यहाँ पर भी कर रहे हैं binary में, right? अब maximum हमारे 16 हो गए. It means 4 bits चाहिए to represent a 0 to 15 number, right? So likewise, if you want further counting, you have to go with 5 bit, 6 bit, and so on. So अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है कि जो हमने कहा था कि अगर जो आपका इंटीजर पार्ट है एक फ्रैक्शनल पार्ट है किसी भी नंबर डेसिमल नंबर, राइट? तो आपका जो पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला है जो वो इंटीजर पार्ट है, उसके लिए वैल्यू निकालने तो हमने कैसे यूज करना है? 2 की पावर 0 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग, और राइट पे जाना है तो हमने क्या करना है? 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है. ये हमने देखा था लास्ट टाइम. नाउ कमिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स. Just hold on. So for hexadecimal number systems, we are having a base of 16. We studied already, right? तो यहाँ पर हमारे पास क्या 0 to 9, then 8 to F. उसके बाद क्या होगा? 1 0 to 1 1, 1 2 up to 1F. देख रहे हो? Then 2 0 to 2F. Like this. तो काउंटिंग आपकी इस तरह चलती रहेगी. तो यहाँ पर जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 2. So the same way that we have did in your binary or in decimal number system, तो हेक्साडेसिमल में सेम करेंगे. सिर्फ फर्क क्या होगा? यहाँ पर बेस 16 है तो 16 की पावर वाला चीज हो जाएगा. तो लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट में 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 2 3 अप टू 16 की पावर n, एंड ऑन द फ्रैक्शनल पार्ट इट गोस फ्रॉम 16 की पावर -1 to 16 की पावर -m, right? The decimal equivalents for A to E are 10 to, sorry, A to F are 10 to 15. That's we know, right? Now advantages क्या है for hexadecimal number system over binary? The hexadecimal number system provides a condensed way of representing the large binary numbers. This will show today. Since decimal numbers is not used in computers and binary notation appears too cumbersome and inconvenience to handle, so hexadecimal representation is simplified method for representing the numbers. So in your computers, whenever we store some data, so everything is in the form of hexadecimal numbers. अभी hexadecimal numbers कैसे होते हैं? Let me share my screen. Hold. जो आपके hexadecimal number systems हैं, एक मिनट. So हमारे पास क्या है? जब भी कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा कि हमारे पास 4 बिट्स चाहिए, राइट? So let me write it here. Is it visible screen? अभी नहीं होगा. Sir. No, हाँ? sir. एक मिनट. No, sir. Hold. अब विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो हेक्साडेसिमल की बात करते हैं हम. तो इसमें क्या होता है? मान लो आपने कोई बाइनरी नंबर दिया है. लेट्स टेक 1011, टेक एनी नंबर ऑफ योर चॉइस. ठीक है, सपोज ये नंबर है हमारे पास. अब अगर मेरे को बाइनरी नंबर लिखना है तो मुझे हर एक बिट को 1 1 से रिप्रेजेंट करना है. तो अब अगर मुझे मान लो कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर है मेरा बाइनरी नंबर, इट्स हैविंग सो मेनी बिट्स, है ना? तो ये इसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम क्या करते हैं? वी विल टेक अ हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स. इसमें कैसे करते हैं मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं सीधा कि हेक्साडेसिमल मींस बेस 16 दैट इज 2 raised to power 4.
तो we will start from the rightmost if it is entire is the integer part, right? तो यहां से 4 तरह के पेयर बना लो, 4 बिट्स के यहां से लिए, नेक्स्ट 4 सर? बिट्स। हाँ जी बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, राइट टू लेफ्ट से हमारी पावर पॉजिटिव होती जाती है कि नेगेटिव होती जाती है? पॉजिटिव। हाँ जी, ओके 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन फ्रॉम ओके सर, इंटीजर पार्ट। अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा राइट पे तो पावर -1 यहाँ पर, 16 का -2 ऐसे जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल वो नहीं कर रहे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं सिंपल, कि कोई भी आपको नंबर गिवन हेक्साडेसिमल, उसको अगर आपने इक्विवेलेंट लिखना हो, उसको कंडेंस फॉर्म में लिखना हो बाइनरी नंबर, तो कैसे करना है? तो आपको ये नंबर गिवन था बाइनरी में, दिस नंबर इज गिवन टू यू इन बाइनरी, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल, तो व्हाट विल डू, आई विल मेक अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अब ये 4 बिट्स, फर्स्ट 4 बिट्स है, इट्स रिप्रेजेंट व्हाट, 0 1 1 0, तो ये किसके इक्वल है? 6। 6 के इक्वल सर। और 1 1 0 1 किसके इक्वल है? 4 8 + 4 + 1 सर 13 आएगा, तो 13 में शायद से C होता है। यस। और 1 0 0 8 8, देन 0 1 0 1 0 1 0 1 5 5। अब देख लो यहाँ पे 1 बच गया अकेला, है ना? तो अगर 1 अकेला बच गया तो क्या करो, इसके साथ में 3 0 लेफ्ट में अपेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और ये क्या बन गया 1। 1 तो दिस इज योर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देख रहे हो? तो आपका जो ऊपर नंबर था बाइनरी, कितना बड़ा नंबर था, इसको कितने कंडेंस्ड फॉर्म में हमने लिख दिया इन हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सर ये सी आएगा या डी आएगा? आप बताओ, आपने बताया मुझे सी तो। 13 था सर। 13 क्या होता है? 13 इज डी। सर डी होता है सर। डी आएगा। डी होता है। होता डी है, आएगा जिसने सर। बताया। राइट, अब इसमें देखो क्या है, ये तो हो गया, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बाइनरी नंबर इज गिवन टू यू एंड यू हैव रिटन इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। Likewise, if you are given a hexadecimal number and want to convert to binary, तो क्या करोगे, उल्टा कर दो बस, है ना? तो अब बाइनरी मान लो अगर जैसे ये नंबर ले लेते हैं 158D6 16, इसको लिखना है आपने बाइनरी में, तो हर एक बिट का इंडिविजुअली क्या लिखो, 4 बिट्स। 1 is equivalent to what, 0 0 0 1, 5 is equivalent to what, 0 1 0 1, like this you can complete it. सर इस केस में डिवाइड करके 16 से नहीं कर सकते? नहीं, डिवाइड कब करते हैं? डेसिमल सिस्टम। सर डेसिमल when we are given a decimal number, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 683 गिवन है आपको डेसिमल में, ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, तो क्या करोगे, 683 लो, डिवाइड करो 16 से, 16 4 64 43, देन 16 2 32, तो क्या रिमाइंडर आया, 11 stands for B, सर। then again divide 16 to the 32, 10 remainder, 10 means A, ए सर। then 16 0 0 आ गया remainder सर। 2, तो ये क्या बना, that 683 in decimal is equivalent to what, 2AB 2AB AB in 16। तो अब एक थंब रूल आप याद रखो, क्या थंब रूल है, कि whenever a number is given in decimal नंबर सिस्टम में गिवन है, मींस उसका बेस 10 है, और उसको आपने कन्वर्ट करना है आइदर टू बाइनरी और टू ऑक्टल और टू हेक्साडेसिमल, तो किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो करना क्या है तरीका, उसको डिवाइड करना है विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेस जिसमें कन्वर्ट करना है। आई लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज मेरे को नंबर गिवन है 570, अभी डेसिमल नंबर गिवन है, मुझे इसका निकालना है, बाइनरी भी निकालना है, ऑक्टल भी निकालना है, हेक्साडेसिमल भी निकालना है। 2 8 से सर, 2 हाँ, से तो और 2 से डिवाइड करोगे तो बाइनरी निकलेगा, 8 से डिवाइड 8 करोगे से तो करेंगे तो ऑक्टल ऑक्टल, और 16 से और करोगे तो 16 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड मुझे कब करना है, अगर तो मेरे को नंबर डेसिमल में गिवन है
तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसके बेस से डिवाइड करना है। क्लियर इतनी बात? यस अब सर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में सर? क्या है, मान लो आपको कोई नंबर गिवन है बाइनरी में। सर हाँ बोलो। सर वो रिपीट कर दो सर, आपने कहा था कि बेस से डिवाइड करने वाले सर वो। ये देखो इसमें पता क्या है, जैसे 570 गिवन है, यस सर। आपको ये गिवन है डेसिमल नंबर सिस्टम है, राइट? आपने हाँ कन्वर्ट जी। करना है बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है बताया था मैंने आपको, 2। ऑक्टल का बेस ठीक है। कितना होता है, 8। 8 हेक्स का 16। 16 तो अगर 570 गिवन है तो क्या करोगे, मान लो आपने कन्वर्ट करना है टू बाइनरी, तो 2 से डिवाइड करो। 2 2 4 किया, 16 5, रिमाइंडर 0। यस सर। 1 4 2, रिमाइंडर 1। 7 1, रिमाइंडर 0। 3 5, रिमाइंडर 1। 1 आ गया रिमाइंडर, 1 7, रिमाइंडर 1। सो फिर से 1 आएगा रिमाइंडर। 2 4 0, 0 2 2 0, 2 ओके 1 0, 2 सर। 0 1। अब ओके इसको सर। रीड करो तो यहाँ पर क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट, 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0। ओके सर ठीक है सर। सेम इन केस ऑफ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल यस में हो जाएगा ना। यस यस। ओके तो सर। यहाँ पर अगर मान लो, अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ यहीं पर। ये चलो, आपने ये तो कन्वर्ट कर लिया कि एक डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लो मुझे इसी नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो एक तो तरीका क्या है कि मैं 8 से डिवाइड करूं 570 को, है ना? यस सर। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसी को बाइनरी को यूज करूं। वो ठीक है। कैसे करेंगे, इसी बाइनरी के ऑक्टल में करना है तो बेस कितना है इसका, 8। 8 इसमें 2 4 3, तो यहाँ पर 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन बना दो। बनाएंगे हम। 1 अकेला रहेगा तो 2 0 पेंड कर दो। तो मतलब जितनी पावर गिवन होगी उतने हमें मतलब ये डिजिट्स ले लेना सर। यस। ओके सर। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा देखो, 0 0 1 मीन्स 1, 0 0 0 मीन्स 0, 1 1 1 मीन्स 7, 0 1 0 मीन्स 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने निकाला सही निकाला गलत निकाला है। तो वेरीफाई सर के लिए एक क्या बारी करो, और बता दो। हाँ हमने क्या किया, जो बाइनरी में गिवन था ना बच्चे नंबर, हमने बाइनरी तो आगे करना आपको, ठीक है? फ्रॉम बाइनरी नाउ वी आर कन्वर्टिंग टू ऑक्टल स्टेट वे। तो हमने क्या किया, हमने बाइनरी के 3 बिट्स के पेयर बना दिए स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट, फिर उसका इक्विवेलेंट लिख दिया नंबर, तो ये ऑक्टल में बन गया हमारा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर मेरे को ये बाइनरी ना गिवन होता तो आप 8 से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यस सर। बताओ किस में जाएगा, 8 8 7 56, यस सर। 10 8 1 1 1 सर 2 2 रिमाइंडर आ बचा। गया। देन 8 किस में जाएगा, 8 से 64 64 तक सर। ये भी गलत आया हमारा कुछ। 8 8 से 64, जिस सर रिमाइंडर बचेगा इसमें। कितना आएगा रिमाइंडर, 7, ठीक है? यस सर। देन 8 1 से 8, यस सर। 0 रिमाइंडर 1 यस सर। सही है सर। तो हमने दोनों तरीके से वेरीफाई कर लिया, डेसिमल से 8 से डिवाइड करके देख लिया और बाइनरी से भी ऑक्टल निकाल देख लिया, दोनों में सेम आया। अब आप एक काम करो, फटाफट इसका हेक्साडेसिमल निकालो सेम नंबर का, यूजिंग 2 वेज। एक तो बाइनरी से निकालो और दूसरा 6 से डिवाइड करके निकालो, फिर चेक करो दोनों सेम आते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जो हमने 010 को 2 लिखा सर, ये हमने कैसे करा? लास्ट क्लास लगाई थी आपने, हाँ सर वो तो लगाई थी सर, लाइक सीधे कैसे लिख दिया? 0 1 0। यहाँ पर अगर मैं नंबर तो 0 1 0, इसका वेट कितना है, 2 की पावर 0, 0 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो बताओ कितना होगा, तो होगा। ओके ठीक है ठीक है। इसको मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, 8 4 2 1 याद रखो। अब 3 बिट्स है तो सिर्फ 4 2 1 याद रखो। तो आपने लिखा 0 1 0, तो सिर्फ ये वाला मान है ना, तो 2 आएगा इसका आंसर। ओके सर ओके। याद है? अगर नहीं याद है फिर देख लो। हमने नहीं क्या सर किया याद था, आ गया। काउंटिंग लिखी थी पहले ऐसे, यहाँ ऊपर लिखा 4 2 1, पहले 0 आ गया, 1 चाहिए तो 1 वाला 1 कर दिया, 2 चाहिए तो 2 का 1 कर दिया, बाकी 0, 3 चाहिए तो 2 + 1 होता है,
3 कर दिया। Yes, sir. 4 कैसे लिखेगा? 4 यहाँ पर कर दिया 1, बाकी 0। 5 के लिए ये और ये 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिया। 6 के लिए 4 + 2, 7 के लिए तीनों 1। ओके सर, ठीक है, राइट, याद आ गया। हाँ। तो अब देखो हमने क्या करना है, 570 का निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। तो 570 को आपने डिवाइड करो, आ रहा है कितना आ रहा है? 23A आ रहा है। Yes, sir. 23 है. 3A। यस सर 2 3 Yes, sir. ठीक है, अब जो बाइनरी कीमत है उसे देखें। अब बाइनरी में क्या करोगे? अब इस बाइनरी के 4 तरह के पेयर बनाओगे। एक ये बन गया पेयर, फिर यहां से स्टार्ट करो, ये बन गया, फिर ये लास्ट बन गया। तो 0 0 1 0 क्या हुआ? 2। 0 0 1 1 क्या हुआ? 3। 3 1 0 1 0 क्या हुआ? 10। 10 मीन्स A। तो सेम आया। यस सर तो अभी हमने क्या सीखा? हमने अभी भी जो चीजें सीखी हैं वो क्या है कि अगर कोई नंबर आपको गिवन है बाइनरी में, तो यू कैन स्ट्रेट अवे कन्वर्ट टू ऑक्टल और हेक्स हेक्साडेसिमल विदाउट एनी कन्वर्शन टू डेसिमल। कई कई करते क्या है कि मान लो आपको गिवन है नंबर बाइनरी में और आपको क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने मान लो 1010 है, इसको निकालो, इसका हेक्स कितना है। तो एक तरीका तो क्या है कि जो बाइनरी में गिवन है इसको कन्वर्ट करो पहले डेसिमल में, डेसिमल से डिवाइड करो 16 से, फिर निकालो हेक्साडेसिमल। ये मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया। A. तो आपको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेट अवे फ्रॉम बाइनरी यू कैन स्विच ओवर टू हेक्साडेसिमल। यस सर क्लियर है पॉइंट? अब इसका उल्टा करना तो वो भी आपको पता है। जैसे मान लो मैं नंबर दूं आपको 567 और पूछूं इसका बाइनरी बताओ क्या आएगा, तो कैन यू टेल मी द बाइनरी नंबर ऑफ दिस? बोलो शाबाश। So 101 101, ओके, 110 वेरी गुड, 1 111 111 आ गया। अब मैं बोलूं इसका हेक्साडेसिमल निकालो, सर वही 4 4 के ले लो। बताओ, बोलो बोलो शाबाश, बनाओ। 0101. 0101, सर आई वांट हेक्साडेसिमल। सर Sir, 177. 177, 7 यस सर Okay. 107 okay, now I am writing some numbers, you tell me whether I am writing a correct or wrong. Right, the number is 378, सर बेस सेम करना Sir, first is wrong. first is wrong, why? Yes, sir. Sir, 7 तक ही तो होता है octal. Very good. यस सर। Second, Second भी wrong. और 1 why? 0 और 1 use बाइनरी होता में है। 0 और 1 ये चीज हमें ध्यान रखनी है। होता क्या है एग्जाम में कई बार हम आपको जानबूझ के दे देते हैं और आप लोग कन्वर्शन करके आए होते हो फटाफट। तो आपने सीधा लिखना है कि दिस इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर, दिस इज नॉट अ वैलिड बाइनरी नंबर, है ना? तो ध्यान रखना है आपने कि जो नंबर सिस्टम है उसके बीच में नंबर होना चाहिए। अब मान लो मैं आपको ये दूं, सर ये सही है। ये तो सही सही है है। सर तो ये मतलब सर तो 101 में आ रहा है, तो 10 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल, राइट? अब मुझे बताओ, ये तो आपको कन्वर्ट सिंपल करनी आएगी। अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं, लेट्स से पॉइंट, सर ये जो 101 लिखा है ये हमने हेक्साडेसिमल में लिखा है, लाइक हाँ यहाँ इसको कन्वर्जन लिखी है या ये हाई अभी कन्वर्जन नहीं करी। अभी हमने ये देखा कि ये नंबर क्या ये करेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है, पॉसिबल, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। पॉसिबिलिटी देखी है। अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ मुझे इसको। अगर इसका ये डेसिमल निकालना होगा तो कैसे इन निकालेंगे? 0101. इफ वी वांट टू कन्वर्ट इन डेसिमल, एक 0 और लगाना पड़ेगा आगे तो। नहीं 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 नहीं, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम। डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय अच्छा से डिवाइड बाय 16 कर 16, ऑल देंगे। एग्री? सर मल्टीप्लाई सर इसमें वो आप बताओ, 16 आप कोई डिवाइड कर, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई होगा सर। मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड कब होना है? जब हम डेसिमल से बस हेक्साडेसिमल में करना ये चाहते थंब रूल याद रखो कि हमने बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है,
अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से कहीं पर भी और जाना है, मुझे तब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई कब करना है? अगर मुझे किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में आना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेक्साडेसिमल में डेसिमल में जा रहा हूं तो क्या करूंगा? 1 into 16 raised to power 2 plus 0 into 16 raised to power 1 plus 1 into 16 raised to power 0. 0. Likewise, if suppose I am given a number 101 again and it is octal and I want to convert to decimal, तो क्या आएगा? 1 into 8 raised to power 2 plus 0 into 8 raised to power 1 plus 1 into 8 raised to power 0. Similarly, if I are given a number 101 in binary, so it will become what? 1 into 2 raised to power 2 plus 0 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 0. So इन तीनों में देखो क्या फोकस है? तीनों में ये फोकस है कि आपका जो किसी भी नंबर सिस्टम से जब डेसिमल में आना है तो हमने हर एक की प्लेस वैल्यू के ऊपर फोकस करना है कि आपकी पावर बेस कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग वो किस प्लेस पे है। एग्रीड? तो जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग बेस की पावर से, वो कब करना है? जब भी किसी और नंबर सिस्टम में है और हमने डेसिमल में आना है। क्लियर हुआ इतनी बात? सर जब भी किसी और सिस्टम में है और हमें डेसिमल में आना है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। बस ओके सर, ठीक है। अगर अब देखो, बाकियों से डेसिमल में जाना है तो डिवाइड। बिल्कुल, डेसिमल से अगर बाकियों में जाना है तो डिवाइड करना है उसके बेस से, और अगर किसी बेस से हमें डेसिमल में आना है तो उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। यस सर, ठीक है। यस सर। अब ये तो होगा चीजें कब जब हम कर रहे हैं इंटीजर की बात, है ना। अब इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं आया कुछ भी। अब हम लेते हैं बात फ्रैक्शन वाली बात कि फॉर एग्जांपल नंबर गिवन है 0.101, एक गिवन है 0.101 इन ऑक्टल, ये गिवन है 0.101 इन। अब बताओ मुझे क्या होगा इसका इक्वल डेसिमल? बोलो। So 1 into 16 की पावर -1 माइनस। वेरी गुड, प्लस 1 into 16 की पावर -3। वेरी गुड। इसमें क्या होगा? डेसिमल करिए। 1 into 8 की पावर -1 -1 1 into 8 की पावर -3 इसमें 1 into into 2 2 की पावर -1 -1 प्लस 1 into 2 की पावर -3। क्लियर हो गया ये बात? तो ये फ्रैक्शन में आपने ऐसे करना है। अब सर 0 को निगलेक्ट करना है। लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेगा तो क्या ही आएगा वो। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ओके लिख लो, सर, कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है। अब तो किसी भी नंबर सिस्टम से आप किसी और में गए तो आपने फ्रैक्शन पार्ट में क्या किया? मल्टीप्लाई किया यहाँ पर विद द रिस्पेक्टिव पावर। तो 6 की पावर -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब जब उल्टा करोगे आप तो क्या होगा? मान लो आपको नंबर गिवन है, कोई डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है, अगेन लेट्स से 0.101 ही ले लेते हैं। ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है मुझे इक्विवेलेंट हेक्स में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट ऑक्ट में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट मुझे करना है बाइनरी में। तो क्या करेंगे? इसके पॉइंट के बाद वाले सर, पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड। हाँ, तो अब क्या करेंगे? we'll take 0.101 into 16। कितना आएगा? 1.616। 1.616। तो ये 1 उठा लो, इसको पॉइंट के बाद यहाँ लगा दो। अब क्या बच गया फ्रैक्शन पार्ट? 0.616। यस सर। यस इसको मल्टीप्लाई करो 16 के साथ, क्या आएगा? निकालो। 9.856 1.856। 9 आएगा? 9.856। 9.856। तो यहाँ पर 9 लगा दिया। फिर इसको फ्रैक्शन के पार्ट को उठाओ, 0.856 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 13.696। 13.696। 69 13 किससे इक्वल होता है? सर डी के। डी। तो यहाँ 0.696 लो, फिर 16 से मल्टीप्लाई करो। 11.136।
So like 11 कितना हो गया आपके पास? सर B. 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 So like this you can continue. Similarly, if I want to do an octal, तो क्या करोगे? सर into 8 कर देंगे. Yes, Into करो करो. 0.808. 808. 808. तो यहाँ इंटीजर पार्ट 0 आया तो put it पॉइंट के बाद 0. Then 0.808 into 8 कितना आया बताओ? 6.464. 6.464. 464. 4. तो 6 पिक करो, 6 यहाँ डाल दो और फ्रैक्शन पार्ट 0.464 into 8 करो, 3.712. 3 उठाओ यहाँ डाल दो, 712 है. 12 है सर. 0.712 है सर. ठीक है. 0.712 into 8 करो, 5.696. 5.696 तो 5 यहाँ आ गया. एंड यू कैन कंटिन्यू. अब बाइनरी में करना तो क्या करोगे? सर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा. यस. 0.202 पहले यस सर. पॉइंट लगाओ 0, फिर 0.202 into 2 0.404, 0.04. फिर 0 आ गया, फिर 0.404 into 2 0.808, 808. फिर 0 आ गया, फिर 0.808 into 2 1.616. 1.616. तो यहाँ 1 उठाया, यहाँ 0.616 into 2 कर दिया, कितना आया? 1.232. फिर 1 उठाया एंड सो ऑन. सो देखो जब भी हमने किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी सिस्टम में जाना है फ्रैक्शनल पार्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके हम जो इंटीजर पार्ट है उसको नोट डाउन कर रहे हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके सर. क्लियर होगी सारी कन्वर्जन? यस इसी सर. नंबर सिस्टम में भी अगर आपको दूं आप कन्वर्ट कर लोगे अब? सही है, सो नो? यस सर. ऐसा कर लेंगे सर. चलो मैं फिर देता हूं आपको, होल्ड करो, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं एक मिनट. एंड आई वांट अ करेक्ट आंसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. Write down one number. Okay, let me write down here. Is it visible to everyone? Yes sir. Okay. So the number is wait. One zero double zero, sorry, 100 11 01 0 1001 1010. ये नंबर गिवन है आपको बाइनरी में, ठीक है. अब इस नंबर के इक्विवेलेंट निकालोगे आप सारे नंबर्स, डेसिमल भी, ऑक्टल भी, हेक्स भी. फिर इसके बाद आप लेना नंबर 0.10111, इसको भी कन्वर्ट करो सब में. सर फर्स्ट हो गया. तीनों में कन्वर्ट हो गया. I want in terms of decimal also, hex also, and octal also. सर पहला वाला डेसिमल में क्या आ रहा है? अब बताओ कितना आ रहा है आपका, लिखते हैं वही. 154. 154 in decimal. Okay. सर
सर ऑक्टल में ये 232 है। यस सर, ऑक्टल में 232 और 9A है। 9 Yes, sir, 9. यही है सर। सबका ही आ रहा है। यस सर। आगे चेक करो, 155 है ये। अगला चेक करो। 155 बोला था मैंने। वो जो 154 है वो मैंने 155 बोला था, आपने वो 155 है वहां पर, ये कह रहा है डेसिमल में सर। ये वाला हाँ जी सर। ठीक कर देते हैं। ये निकालो नीचे वाला। कितना आया नीचे वाला? क्या हुआ नहीं, इतना टाइम लग रहा है? सर स्क्रीन दिखाना सर, वो वापस सर अब लिख रहे थे हम, लाइक Okay. उसको देख के सॉल्व कर रहा था। ओके, होल्ड। सर ये डेसिमल में 0.27 है। आप बताओ कितना है, वो लिखूंगा पॉइंट। नहीं सर, ये 0.223 0.223 223। सर ऑक्टल में 0.27 0.27। सर अभी निकाल रहा हूँ सर। चलो आपके आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है इसमें। सर ऊपर 154 होएगा। यस सर, ऊपर ये जो है ना 1001 सर 101 उसमें जो 1 ये वाला उसमें। यस सर। पहले 54 था, 55 कराया। नहीं सर 54 ही है। यस सर 54 ही है। देखो इसको ये चीज चेक कर लेते हैं, इसका वेट कितना है? 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो 128 प्लस 16 कितना हो गया? 144 प्लस 8 152 प्लस 2 154 होगा। ये सर ये ठीक है, ऑक्टल और ये हेक्साडेसिमल।
ऑक्टल सिंपल निकाले यहाँ से आपने पेयर्स बना के, है ना? सर ये जो है ना डेसिमल वाला, हाँ इसमें आ रहा है 0.71875 यस सर, हेक्स में, डेसिमल में। डेसिमल में। ये वाला यस सर, यस सर। कितना आ रहा है? 0.718 718 कुछ 718 आएगा। 875 875 875 सर। 875 सॉरी। सबका ही आ रहा है? यस सर, ये यस सर, यही आ रहा चेक है। कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। सर और उसमें कितना है आपका ऑक्टल में? ऑक्टल में 0.27। 0.27 गलत आया। 0.0631। नहीं सर 56.56 नहीं, क्या 0.56? हाँ ठीक है। कैसे निकाला? सर मैंने क्या करा कि डेसिमल के बाद जो है ना उन तीन की ग्रुप्स बना दिए। यस। तो अब जो आपको मैंने बताया था ना पहले, जैसे मान लो ये नंबर है मेरा, इसी को बनाते हैं ऊपर 1001110। मान लो इसके बाद पॉइंट लगा दिया मैंने 10111। सपोज दोनों नंबर कंबाइन कर दिया मैंने सपोज, और मैं कहूँ इसका निकालो आप ऑक्टल। तो जब पॉइंट से आपने शुरू किया तो इस साइड पे तो आपने 3 के पेयर बनाए थे। अब इस साइड पे राइट से शुरू करो, पॉइंट से, यहाँ 0 पॉइंट कर दो। तो क्या बन गया ये? ओके 2 3 2 3 देन 2.56। लाइकवाइज यही मिस्टेक होगी सर, लाइक हमने वो उल्टी तरफ से बना लिए पेयर। नहीं, ये ध्यान रखना कि हमारा जो पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट, वही हमारा हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे लेफ्ट पे जाए राइट पे जाए, ओके वहीं से सर। ग्रुपिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ऐसे ही हेक्स में करो कन्वर्ट। सर पॉइंट B8 आएगा। पॉइंट B8, यस सर। यस सर। बिल्कुल यस ठीक। और सर, लेफ्ट ये पे ठीक कितना है। आएगा? लेफ्ट सर ये 9A Yes. है ना, 9 1001 एंड 1010। क्लियर है? यस सर। ओके, लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। ये दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। कन्वर्जन ऑफ यस फ्रैक्शंस। सर। नाउ लेट्स टेक सम मोर आपकी प्रैक्टिस के लिए। जस्ट टेक दिस क्वेश्चन एज अ बाइनरी। लेफ्ट पे गिवन है ना आपको 100111010। सर ये तो हो गया ना? यही है, सेम ही है। सर यही तो किया Yes, था sir. सर अभी। राइट। ओके नाउ, अब आपको इसकी, ये तो हो गई कन्वर्जन सारी की सारी। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका अर्थमेटिक। सर वो साइड पे एक बार देखना, पॉइंट B8 या पॉइंट B2 आएगा। कहाँ पर बचे? इसी में? नहीं, जो साइड पे आपने बोर्ड खोला हुआ था। एट ही आएगा। क्या इसमें बताओ, क्या पूछ रहे हो? ठीक है सर। ठीक है Clear वो ना? सर, ठीक है। यस। डाउट तो नहीं है, बता दो। नहीं सर, वो B80 का पूछ रहा था, वो ठीक है। ओके ठीक है। अब ये तो हो गया हमारी कन्वर्जन। तो आपको अगर मैं कोई भी नंबर सिस्टम दे सकता हूँ, आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, है ना? अब तो कोई इश्यू नहीं है किसी के पास। नो सर, कोई इशू नहीं है। हाँ। नहीं है सर, वो कर अब मैं आपको सिखाता हूँ एक नई चीज। नई चीज में क्या है? लेट मी ओपन द स्क्रीन। बाइनरी अर्थमेटिक। ये बाइनरी एडिशन कर लेते हैं पहले हम। अब इसमें क्या है कि मान लो आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम? मान लो आपको नंबर गिवन है कोई, लेट्स टेक 1001011 सपोज। अब ये नंबर आपको बाइनरी में गिवन है। अब आपने क्या करना है? आपने
इस नंबर को ऐड करना है विद सम अदर बाइनरी नंबर, लेट्स टेक सम अदर नंबर 1 1 0 1 1 0 1 1 सपोज। तो क्या करेंगे हम, इसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट तरीका होता है कंप्यूट द 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि मान लो मेरे को इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करो, जो बिट्स 1 है उसको 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। आई अगेन रिपीट, जब भी आपने 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले निकालना है 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर गिवन है उसको पहले 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। तो इन दिस केस ये क्या बन जाएगा? 0 1 1 0 1 1 0 0। अब जब 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया उसमें क्या करो, प्लस 1 कर दो, इट विल मेक 2's कॉम्प्लीमेंट। सर मतलब अगर 1 + 1 होगा तो वो 0 आएगा? 1 + 0 दोबारा बोल, क्या नहीं बोले? नहीं सर, आप लाइक आपने 2's कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, सर जहाँ पर 1 + 1 लिखा होगा वो 0 आएगा मतलब उसका आंसर फिर? हाँ वो उसी में आ रहा है, मेरे को 1 मिनट होल्ड करो। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे है। उसके लिए आपको समझ में आ गया कि आपने जो भी नंबर गिवन है उसको उल्टा कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, राइट। अब जब ये निकाले 1's कॉम्प्लीमेंट तो उसमें 1 ऐड कर दो। ये 1 ऐड किया तो आपको यहाँ पर क्या हो गया? 1 0 1 1 0 1 1 0। तो दिस इज व्हाट द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, राइट। अब आपके पास क्या है कि जब ये नंबर लोगे इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। इसका कैसे निकालेंगे? अगेन इसकी पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, 0 0 1 0 0 1 0 0। इसमें +1 कर दो तो क्या आ जाएगा नंबर? 0 0 1 0 0 1 0 1। ये आ गया। अब इसको इसके साथ ऐड करो, 0 0 1 0 0 1 0 1, राइट। अब यहां पर क्या है, जब आप ऐड कर रहे हो तो यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन आती है? 0 + 0 हो सकता है, 0 + 1 हो सकता है, 1 + 0 हो सकता है और 1 + 1 हो सकता है ना। तो अगर 0 + 0 है तो इसको लिखेंगे 0, इसको 1, इसको 1 एंड इसको 0। ये मैंने क्या लिखा है? सम। इसी तरह आई विल राइट कैरी ऑल्सो, जैसे हम नॉर्मल बाइनरी में करते नहीं, सॉरी डेसिमल में करते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करते हैं, कुछ कैरी आता है तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। तो लाइकवाइज इन बाइनरी ऑल्सो जब हम कैरी करेंगे तो 0 + 0 में कोई कैरी नहीं आ रहा, इसमें भी कोई कैरी नहीं आ रहा, इसमें भी कोई कैरी नहीं आ रहा, लेकिन 1 + 1 में 1 + 1 तो 2 हो गया एक तरह से, 2 कर सकते हैं बाइनरी में हम 1 0। तो अब आपने एक चीज देखनी है क्या, कि जब हम बाइनरी में लिख रहे हैं नंबर 2 इज इक्वल टू व्हाट? 1 0। इसमें 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरी वाला सर, कैरी वाला आप इस बताना सर, कैरी वाला देखो कैसे दोबारा से देखो, कैरी वाला रिपीट कर दो। मैं सारा रिपीट सर करूंगा। सर एक मिनट आप पिछली स्लाइड भी दिखा दो। हाँ वही उसी पे आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, वही बना बार से थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके दो नंबर है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? आई विल गेट 2 थिंग्स, वन इज सम इनका और एक क्या आएगा? कैरी आएगा। एग्रीड और नॉट? तो लेट मी राइट हियर सम एंड कैरी। अब जब मैं 0 में 0 ऐड करूंगा तो सम क्या होगा? 0 ही होगा, 0 एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी कैरी। कैरी समझते हैं? जैसे मैं सिंपल करता हूँ बाइनरी में, मान लो आपने 15 + 15 किया तो यू से 5 + 5 10, 0 सम एंड 1 इज कैरी, ऐसे करते ना, देन यू राइट 30। तो likewise here also when you add 0 and 0 you will get 0, there is no carry. But when you add 0 and 1, again 1 with no carry. If you add 1 with 0, again answer is 1, no carry. But when you add 1 with 1, it becomes 2. 2 means what? 0 sum and 1 carry. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना लिखा? लिखना 1 ही पड़ेगा हमें, चाहे जो मर्जी हो जाए।
लिखना 1 नहीं पड़ेगा बच्चे, देखो मैंने क्या लिखा, 1 तो आपका कैरी में आया है ना ये। अरे मतलब सर लेकिन नीचे तो 1 ही लिखा ना हमने, एक कैरी चला गया, अगर 2 आएगा तो हम 2 सीधे नहीं, मतलब सीधे नहीं लिख सकते 2 को। 2 देखो बाइनरी में 2 नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, 2 को लिखने के लिए क्या तरीका है, 1 0, ओके 3 के लिए सर, 1 1, ओके है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि बाइनरी में नंबर ऐड करो यार, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, तो आप तो बोलोगे सर डेसिमल तो 1 + 1 + 1 3 होता है, लेकिन बाइनरी में क्या होगा, 1 + 1 करोगे तो इट विल बिकम 0 सम 1 कैरी, फिर एक और 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सम 1 कैरी, तो इट विल बी 1 1, और ये नंबर क्या होता है मेरे पास, 2 1 करो, 2 + 1 3 हो गया। क्लियर और नॉट? अभी क्लियर नहीं हुआ इसका सर, मतलब ये समझ 2 नहीं आया। + 1 3, हर ये नहीं समझ आया ये क्या करा है। सर देखो ये मैं थोड़ा आपको और एडवांस करा दिया पहले ही। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मैंने 1 में 1 ऐड, 3 1 ऐड करने, मान लो तीनों बाइनरी में है, तो आप लोग पहले 2 को ऐड करूंगा मैं, है ना, जब 2 को ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ। सर 1 या 0? 1 0 1 0 आएगा ना, 1 या 0 नहीं, 1 0 1 0 का मतलब क्या है, दिस इज माई कैरी, दिस इज माई सम, और इसका ये दिस बाइनरी नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इन डेसिमल, 10, हाँ ठीक है है। ना। अब इसमें एक 1 और ऐड करो, तो इसमें एक 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 1 बन जाएगा, बन गया 1 1, और 1 1 किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है सर। क्लियर हुआ को नहीं हुआ, हाँ अब समझ गया सर। समझ गए। सर ये अब 2 जितने के मर्जी 1 बाद को ऐड वाला कर बता सकते दो हो। गुरु। सर हाँ बोलो बोलो। सर 2 के बाद वाला था ना, अगर 1 दोबारा देखो लिया तो। 2 में अगर 1 ऐड अच्छा करना है ठीक मेरे है को, सर, ठीक है तो सर। सब बता अगर दो सर सर, मेरे को नहीं लगा सर समझ। देखो 2 कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0, 0। ये तो आता है, यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब 2 में मेरे को 1 ऐड करना है, करो 1 ऐड, तो 1 कहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड करोगे ना 1 स्पेस पे, हाँ जी सर। तो करो 0 + 1 क्या होता है, 1 हो गया। 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये 1 ही जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर। तो 1 1 आ गया, 1 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, 3 इन 3। ओके सर। क्लियर। यस सर। तो अगर मैं ये टेबल पूरा करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर भी सम 0, सॉरी इधर सम 1 कैरी 0, सम 1 कैरी 0, 0। सम 0 कैरी 1। ये जो मैंने आपको कराया ना अभी ये टेबल, एक्चुअल में भी मैं आगे जाकर आपको एक टॉपिक लूंगा, उसमें बताऊंगा कि इसको बोलते हैं हाफ एडर। हाफ एडर इज अ सर्किट, इट्स अ कॉम्बिनेशन सर्किट which is used to add 2 bits। तो ये हम करेंगे आगे अभी। आई थिंक यहाँ पर टाइम हो गया, लेट्स स्टॉप नाउ, अदरवाइज आपका क्लास में आगे निकल जाएगी, ठीक है। एडिशन रह गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शुरू कर देंगे, अभी क्लास का टाइम होगा, दूसरी 5 10 हो गया ना, तो बाइनरी एडिशन इसे ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके सर। यस सर। लेट्स स्टॉप नाउ, लेट्स टेक 10 minutes।